On behalf of the complete Selco family, we welcome you, Sunil Pandey. For the benefit of all the viewers today on this platform, I would like to introduce Mr. Sunil Pandey, who is working as a regional manager with Aga Khan Rural Support Program, Bihar. He is associated with AKRSPI since last 6 years. He has graduated from University of Allahabad and has a postgraduate degree in management and social studies. He has started his career as a marketing professional with Hawkins Cookers and worked for about 2.5 years there. Later in the year 2000, he moved to social development sector. He has 20 plus years of overall working experience with 18 years in social development with many national, international organizations and the UN agencies. So Mr. Sunil is a professional in-depth experience of managing large and complex projects in the areas of sustainable livelihood, drinking water, sanitation, natural resources management, enterprise development, livestock development, and women empowerment. He has firm grip on issues faced while implementing the ambitious development programs, especially in the backward regions of the country, including Uttar Pradesh and Bihar. Social inclusion, particularly of scheduled caste and minorities, has been the prime focus of his work. Organizations development through efficient structures, human resources development, financial management, cost effectiveness, and innovation is among the key thrust areas apart from the programmatic works. Sunilji, I again welcome you. And the moderator for today is Mr. Sudhir Kulkarni. He also has more than 20 years of working experience in the development sector. Namaste, Namaste Pandey ji. He is the Assistant General Manager for training in Central. Namaste, Namaste sir. Over to you, Sudhir sir. Yes sir. Namaste Pandey ji. सबको नमस्ते और सर आपको भी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर. सर बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ हम बात कर रहे हैं. So Aga Khan Foundation is one of the reputed and closely working with the rural development areas in the state in our country. So to begin with, आज के सिचुएशन के बारे में हमने बात किया तो पूरा देश में और पूरा वर्ल्ड में कि ऐसे सिचुएशन है कि कोविड के बारे में हर जगह हर दिन हर वक्त बात हो रहा है. इसमें हम ऐसे ही भी नहीं बैठ सकता है कि काम बिना करके कोविड के रीजन के लेके डेवलपमेंट की काम तो हम तो सब लोगों के लिए करना ही है. और स्पेशली इन द रूरल एरिया इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, एग्रीकल्चर, इस बारे में तो काम हम लोगों को करना ही है. To begin with, I request you to can you give the brief introduction of your organization, sir? Yeah, thank you. So let me welcome you again in this interaction. I'm Sunil and currently associated with AKRSP in the capacity of regional manager for Bihar operations. Let me begin with the organization mission statement. Aga Khan Rural Support Program India exists to enable the empowerment of rural communities and growth, particularly the underprivileged and women, to take control over their lives and manage the environment to create a better and equitable society. Basically, whatever our intervention is, wherever our intervention is, this is the guiding principle for all of us to have incorporate this in all our interventions to maximum outreach of the underprivileged and poor, especially women. This is the vision statement from His Highness the Aga Khan. This is the part of his speech in University of Oxford. So that's a statement taken from there. And the statement is, there are those who enter the world in such poverty that they are deprived of both the means and motivation to improve the circumstances. Unless they can't be touched with the spark that ignites and spirit of individual enterprise and determination, they will sink into apathy, degradation, and despair. It for us who are more fortunate to provide that spark. So this is the vision statement for all those who are associated with AKRSP, and we provide us always, whenever we feel demotivated, we feel depressed. So this statement provides us a kind of spark of light so that we would able to re-energize again ourselves for the betterment of poor and underprivileged people.
Let me explain the journey of AKRSP. In 1983, His Highness the Aga Khan conceptualizes the Aga Khan Rural Support Program for India, and it was year 1983. And a big name you must all of must know, Dr. Varghese Kurian. He was our first chairman, and the first board meeting held in 1984, and between 1985 to 1987, these 3 years were our early programs. And first CEO, Mr. Anil Shah, who was retired IAS officer from Gujarat cadre, was appointed as the first chief executive officer. And you will all happy, there's a famous technique named that participatory rural appraisal. In India, Dr. Robert Chamber has demonstrated this technique in our Gujarat program area in 1989. So we are privileged to first piloting this participatory rural appraisal in AKRSP program area. And in 1989, Dr. Varghese Kurian, our first chairman, retired, and second chairman, Dr. I.G. Patel, who was the former governor of Reserve Bank of India, taken over as of chairman. And in 1990, AKRSP started our own campuses in the state of Gujarat. And in the same year, second CEO, Mr. Very Underwood, has taken a charge of CEO from our first CEO, Dr. Anil Shah. And in 1994, our early Rabi project, CMNR project, it was kind of community managed natural resource management project. So it was there in Gujarat. It was 8-year big project which established AKRSP in Gujarat. And in 1998, our second CEO, Mr. Very Underwood, has visualized to, however, gender was part of the program since the beginning, but he, decided to mainstream the gender in each and every program as a cross-cutting theme. It was initiated in 1998, and in between 1998 to 2002, there were several changes. In 2002, our current chairman, Mr. Nasser Munji, has taken charge, and the same year, a 10-year long scale project started in MP and Gujarat. And our current CEO, Mr. Apurva Ojha, has taken over the charge of CEO, and he is currently CEO of AKRSP since last 18 years. And in 2003, first multi-sector initiative in Kutch, and 2004, AKRSP has started its operation in MP, means the move to single state to multi-state programs. And in Bihar, we have started our operation in 2008. This is the picture of our first board meeting. You may see this end man is our current CEO, Mr. Nasser Munji, and in between you may see the person, great person, Dr. Varghese Kurian, our first chairman, and several other board members, Dr. Kamla Chaudhary, Robert Shah, they are the Mr. Anil Shah, they are there, visible in the picture. This is the first pics of our first board meeting. Some of the point I already, stated in previous slide, so I will not repeat that. So far, AKRSP benefited almost 1.2 million people across 3 states in 3 decades, and currently almost 425 plus development professional and 1000 plus volunteers associated with AKRSP.
These are our, program intervention areas: sustainable livelihood, gender, rural governance, education, sanitation, and drinking water. And self-resilient community-based organization is the core of AKRSP in any of the program, because we feel that this is required for the exit strategy of any project. Unless until you not have the community-based organization in the field, you not able to hand over whatever the resources you generated, and that would not, operation and maintenance would not be covered if the community-based organization would not be empowered there. So this is our belief. You may see the map of India. It's visible in Bihar. We are currently there in 450 plus villages with almost 1 lakh families. This is data is almost 6-month old data. In MP, 245 villages with 20,000 families, and in Gujarat, 1,500 villages with 2 lakh families. And let me add, and over 90% of our beneficiaries belong to the most marginalized section of Indian society, that is scheduled tribes, scheduled caste, and religious minorities. Since Bihar, we don't have the scheduled tribe, so our focus is there to scheduled caste, religious minorities, and extremely backward class people. This is Bihar program area map. You may see the 5 districts, 17 blocks, 142 gram panchayat, 80,319. This is 6-month old data. So currently we have also incorporated Sitamarhi in our program area map. I see, the yesterday evening I see the agenda. So I have seen that you people wish to know that what is our operational strategy. So we feel that NGO is not a kind of replacement or putting some parallel system to the government. NGOs has a kind of limited resources, limited, infrastructure. So we have to strategize ourselves in such a way where we would able to have the maximum impact in a minimum resources. So first one, we would, have to be field implementation as per the community need, and definitely that community needs come through the participatory rural appraisal and other participatory exercises. And the visibility among government people is, required, because unless until you would not share your field implementation with them, so the probability of scalability would be minimized, because government is only the machinery who able to scale it at a large level. So NGO's role is to, kind of pilot in field implementation, but actually scaling role is the, government. And second, after field implementation, we have to, coordinate with the academic institution, other networking NGOs, like we are currently, interacting with each other. Selco Foundation and AKRSP India is interacting with each other. So networking with the other NGOs and research agencies, and analysis of existing government policies, that how it actually affecting the need of, underprivileged people, and what would able to add or delete there, so that they would able to have the maximum benefit. And ultimately the policy change is the prime objective, and for that we have to meet with the senior government staff, right, that support government to write the draft policies, and to present there in different government committees to put the voices of the field and community. So this is the operational strategy of AKRSP. We would like to state it again that we believe that NGO is not a kind of replacement of government.
or to establish something parallel, to the government. NGO's role is little bit different. We have to pilot the thing and advocacy with the government to scale it at a larger level. Our approach in Bihar is, because I think at least I know Mr. Bholanath ji. Bholanath is, based in Bihar. So he would able to visualize this slide in a better way. However, you people also be, able to visualize it, because I know that you are, in frequent visit with Bihar. But see, Bihar is a kind of complex nature and multidimensional poverty. So Bihar needs a special approach and a special strategy. So this is the reason that AKRSP approach is little bit different what we have approached in MP and Gujarat. In Bihar, our approach is to pilot multi-input area development approach in some selected geography where resources are available to work on several themes together, and acquiring in-depth technical skill in some sector of field pilots can lead to state-level policy influence. So if I put this multi-input area development, it means that since the problems are multiple, so our approach would not be uniform. Our approach would be the kind of diversified, so that you able to cater each and every segment of their life. Means it's a kind of life cycle approach. Life cycle approach means you would able to cover from pre-primary education to the livelihood stage. Means the 3-year children to a young adult. So this is the life cycle approach where AKRSP tries to, improve the quality of life of the poorest of poor community. If we, address the community means the hamlets having marginalized population like Dalit, minorities, and extreme backward class with focus on women, and themes are livelihood. Under livelihood, we cover irrigation, agriculture extension, goat rearing, skill development of youth, women saving groups. Under health, we cover sanitation, clean drinking water, and under education, we cover early childhood development, primary education, and school infrastructure activities. So these are, I will take much time on these slides. I will just, quickly, go through these. The community-based group facilitated by AKRSPs are self-help groups, wood producer groups, farmer clubs, means the Kisan Vikas Samitis, drinking water committees, Nigrani Samiti, and Vidyalaya Shiksha Samiti, means the school management committee. In women's self-help group, I would like to state that if you see that so far AKRSP has facilitated 1200 plus group and 18,000 plus women associated with these groups, and their annual saving of year 2018 was almost 5.3 crore rupees. In 2019, it is, was 6.2 crore. So you may visualize that how the power of small saving means that these 18,000 women would able to, save the money almost whatever the small kind of post office saves. Means, 6 crore rupees is something significant from their perspective, where their, monthly income goes to 3,000, 4,000, hardly goes to there. And credit disbursement in 18 was 1.8 crore rupees. Irrigation development and agriculture extension, AKRSP works on solar power based irrigation scheme with support of Kisan Vikas Samitis and producer companies, where 4,000 plus farmers are associated. And major activities in agriculture based livelihood is the vegetable cultivation, pulses production, improved composting, so that they would able to enhance their income and quality of life. Best practices, I would like to state here the solar Mahesh, acknowledgement to DD.
Yeah. DD. Sorry. Sorry, sir, continue. Sorry, sir, continue. Sir, you can continue, sir. Sorry. Yeah. No problem. Solar-based group irrigation scheme is one of the, AKRS's initial intervention in terms of providing farmers over the year irrigation services. Because if you see the poverty of Bihar, the one more problem is there. Because if you divide the land available with the number of farmers, so almost the per capita land is below 1 acre, and Sunilji, there is some disturbance at your end. Sunilji, Yeah? there is some disturbance at your end. Let me check the net connectivity. Is it clear now? Yes, it is clear. It is clear. Yeah. So per capita land holding, especially those groups to whom we are working, is almost 10 katha, 12 katha only. So the vegetable cultivation is the only option for them to maintain their whole year livelihood. And for vegetable cultivation, the only irrigation facility is much essential. Then we visualize that, because, diesel operated pumps are extremely costly and it's ineffective in many times, especially in summer season. It starts from almost March and goes up to June. And its affordability is also, not convenient to the poor farmers. That's why this solar-based group irrigation scheme is a kind of game changer in those districts where ARSP is working. Many of the organizations like Development Management Institute, Patna, International Water Management Institute, the Sunday Guardian, the Telegraph, they all have covered their stories and research to this intervention and found that just has the capacity to enhance the production and productivity in a significant way. सुनील फिर से कोई डिस्टरबेंस है? कोई डिस्टरबेंस है फिर से? Sorry? आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है वापस. Yeah, I think net connectivity is a big issue. It's also infrastructure issue in Bihar. The net connectivity is again, sitting over in Muzaffarpur like city and net is not, working. Let me. Is also an important activity in terms of those who, especially the Dalit and minorities. It's a kind of alternative source of livelihood. And currently we are reaching over 50,000 households. Skill development for rural youth is also one of the flagship activities in the AKRSP Bihar. So far we have trained 10,000 plus youth and they would able to earn income in range of 6 to 10,000 per month as an initial placement. Early childhood development is, we are supporting 200 government-run Anganwadi center. About 8,000 children are enrolled there. And focus is to physical and mental development and effort are putting into infrastructure and learning materials, center, and plan of improving, community involvement in child development through Anganwadi development committees. In primary education, we are supporting 104 government schools and almost 6,000 plus children are enrolled there and focus again here to improve learning level, especially in early grade 1 to 5 only, and
improving the pedagogy through demonstration, better learning material, improved classroom environment, and effort are on improving participation of the community in education for their owners. Drinking water is one of the important activity where AKRSP would able to influence the government policy, because it is now being implemented by government of Bihar in under Mukhyamantri Peojal Nishay Yojana in the name of Har Ghar Nal Ka Jal. Especially those friends who are familiar with Bihar, so they would know that AKRSP was the initial organization who started this decentralized hamlet level community owned mini pipe water system in 2012 from Samastipur. Our first pilot was there at Pusa, and during 2013 to 2015 we have piloted almost 50 schemes and shared the document with the Rural Development Department, Government of Bihar, and department. And Mr. Arvind Chaudhary, who was the principal secretary of Panchayati Raj at that time, has visited AKRSP area and recommended to Honorable Chief Minister of Bihar to incorporate in under Mukhyamantri Sat Nishay Yojana. And fortunately, in same year 2016, the minister was there in field visit at Muzaffarpur and Samastipur, and he himself visited one of the villages in Samastipur under Pusa block and seen this mini pipe water supply scheme, and invited AKRSP delegation in secretariat. And after several round of discussion, AKRSP has nominated to draft the policy of Har Ghar Nal Ka Jal. So this was the major policy influenced by AKRSP, who has changed the multi-story water system to the crore rupees investment to the decentralized system with 10-12 lakh rupees only. Sanitation is also one of the prominent area where AKRSP is partnered with the Swachh Bharat Mission Gramin as well as Lohia Swachh Bihar Abhiyan Bihar, and we have supported almost 34,000 households to construct their own individual household toilet. Pandeyji, 1 minute. Yes. Sorry for interrupting you, sir. Sir, by going through with all these informations, first of all, I would like to congratulate you for the superb work what actually you are doing in these areas. बहुत बढ़िया सा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया मस्त काम कर रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन इधर से. मेरा ये एक इन बिटवीन में क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही आपने बात कर रहे ये भी कवर कर सकते हैं करके मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आपने इंडिया का बहुत बढ़िया स्टेट्स मध्य प्रदेश, गुजरात और मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज बिहार में. ये एरिया पे हम काम करते आ रहा है. ये देखा तो आपका एक्सप्लेनेशन देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बात करते वक्त ऐसे बोला NGO's role is not only like that to this working with the government, but parallelly you are also doing an extremely extraordinary work in developing the rural areas. मेरा ये क्वेश्चन है सर, इसके बीच में इतना स्टेट्स पे आप काम करते हैं, ये में इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी होगा. So कोई yes, like that in the three states में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम्स क्या है, एक बात है. दूसरा वाला, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम आप जब इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं, उसका विजन क्या रखते हैं आप? एस्पिरेशनल प्रोग्राम क्या होगा, उसमें विजन कैसे होगा? सो वो विजन को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको कुछ रोड मैप करना पड़ता है. ये कैसे स्टार्ट होगा,
कैसे हमने इसमें डेवलपमेंट के बारे में बात करना होगा, कब एनालिसिस करना होगा, और ये प्रोग्राम का एग्जिट प्लान क्या है। हमको थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। Yeah. सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। Yeah, definitely. Sure. See, as I stated earlier, मैं जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एनजीओ का रोल जो है वो कुछ पैरेलल नहीं करना है। एनजीओ का रोल है पायलट करना, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना और गवर्नमेंट से स्केल कराना। ठीक है, तो ये मैंने ये कहा इनिशियली में। दूसरा चीज है कि जो AKRSP का एरिया ऑफ इंटरवेंशन है, जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट हम लिए हैं, मतलब 2008 से AKRSP काम कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से। आई एम जस्ट टेकिंग बिहार एन एग्जांपल, सिंस आई एम लुकिंग आफ्टर द बिहार ऑपरेशन इंटेंसिवली, तो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ बिहार। तो वो हमारा एक एरिया अप्रेजल कमेटी होते हैं। वो एरिया अप्रेजल कमेटी वो डिफरेंट इंडिकेटर पे वो पूरे चीजों को एनालिसिस करते हैं। स्पेशली जो पॉवर्टी लेवल है, मतलब दलित का, माइनॉरिटीज का और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पीपल का, उनके लाइवलीहुड पोर्टफोलियो क्या है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ये सारे चीजें वो एक अप्रेजल कमेटी करते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जहां तक बात है, तो ये कॉन्सेप्ट तो 2-3 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है नहीं, फर्स्ट टर्न्योर में लेकर के आ गए। मुझे लगता है 5-6 साल हो गए। तो वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो किया कि जहां पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अवेलेबिलिटी है और उसमें थोड़ा जो है वैल्यू एडिशन से चीजें एकदम से चेंज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं और थोड़े वैल्यू एडिशन से चेंज हो सकते हैं। तो अगर आप एकदम से अपना स्ट्रेटजी और रिसोर्स उन जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि एज एन सोशल पोर्टफोलियो होने के नाते ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो वास्तव में एक्सट्रीमली पुअर है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो बिहार में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मेरे मित्र जो बिहार के होंगे वो हो सकता है मुझसे एग्री करें या डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट बिहार में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट छोटे हुए हैं जो अपना पॉवर्टी इंडिकेटर में एकदम से पीछे है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो एक्चुअली अगर हम एनजीओ होने के नाते सिर्फ हम इसी इंडिकेटर को लेकर के चले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करे हैं तो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को वहां इन्वेस्ट करने हैं, तो इट वुड बी इनजस्टिस टू दोज पीपल हु आर डिप्राइव्ड एंड लिविंग इन अल्टीमेट पुअर सर्कमस्टेंसेस। हाँ, अब हम आपके दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि यस, डेफिनेटली हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, लेकिन अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आउट ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट इट इज ओनली 1। हमारे जो 5 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें केवल मुजफ्फरपुर है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभी है। हमने सीतामढ़ी को अभी शुरुआत किया है। डेफिनेटली वो बिल्कुल अभी चाइल्डहुड स्टेज में है वो प्रोग्राम ऑपरेशन। तो हाँ, अभी अगर हम आते हैं स्ट्रेटजी पे कि हमारे स्ट्रेटजी क्या है, तो एज आई स्टेटेड अर्लियर कि AKRSP बिहार का स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, दैट इज मल्टी इनपुट एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। हम जहां पे काम करते हैं वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हमारा पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं। वहां के जिन इवन की वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पे भी आधारित नहीं होते, बिल्कुल गांव लेवल पे हमें जिस गांव में काम करने हैं वो हर एक गांव का हमारा PRA होते हैं और वो टीम वहां पे वो पूरा इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम को। उनका पूरा लाइवलीहुड प्रोफाइलिंग होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइलिंग होते हैं, उनका स्ट्रेंथ और ग्रे एरिया प्रोफाइल होते हैं, वो पूरा हर एक चीजों में। और वो विलेज लेवल प्लान हम बनाते हैं
और वो बहुत डिसेंट्रलाइज होते हैं। तो हम मतलब केवल जिसे कहेंगे कि अगर कोई प्लानिंग होते हैं तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल के डेटा होते हैं, क्योंकि अगर खाली सेकेंडरी डेटा को लेकर के जो जो गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा को यस आई ऑफ कोर्स की ओर रिलाई करना चाहिए, बट बहुत से चीजों में मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम अपने उसे खुद उसे वैलिडेट करें और उन लोगों के साथ मिलके बनाएं। तो जो हमारे विलेज के प्लानिंग होते हैं बेसिकली ये AKRSP फैसिलिटेशन रोल में होते हैं, वो वही लोग बनाते हैं जो उस गांव के होते हैं। और ये बिल्कुल विलेज वाइज, अगर हमने 450 विलेज में AKRSP में काम कर रहे हैं बिहार में, तो हमारे 450 विलेज का विलेज वाइज प्लानिंग हमारे पास अवेलेबल है, उनका डेमोग्राफी प्रोफाइल से लेकर के उनका रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल तक की। तो ये AKRSP का जो है, जो मेथोडोलॉजी है काम करने का, वो ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर अगर इसमें हम एग्जिट प्लान कैसे बनाते हैं अपने, इसके बारे में, रोड मैप के बारे में बताया आपने, विजन के बारे में बताया, इसमें एग्जिट प्लान क्या होगा आपसे, ये कब तक आपने काम करके बाहर आ जाएंगे गांव से? या बेसिकली अगर हम लोग जैसे एक गांव में, जब भी वो गांव का PRA या RRA में हम लोग जाते हैं, तो वो आपको जब भी डेटा को आप एनालिसिस करते हैं अपना डिफरेंट इंडिकेटर को अपना डिफरेंट स्टेज में डाल के, तो यूजुअली एक गांव को अप टू द सेटिस्फैक्ट्री एक लेवल तक लाने में कम से कम आपको एक गांव में मिनिमम 4 to 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट जरूरी होते हैं। तो हमने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि वी बिलीव इन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो डे 1 में जब भी हम कहीं पे अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो वी फील कि देयर शुड बी ए ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय कम्युनिटी इटसेल्फ। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से हम बनाते हैं। जैसे कि पहला तो उस गांव में हम महिलाओं के समूह बनाते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ में फार्मर्स क्लब बनाते हैं जो किसान विकास समिति के नाम से होते हैं, और एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी फॉर्म करते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ एपेक्स इंस्टीट्यूशन। तो जो मेंबरशिप है वो हो सकते हैं कि जो हमारा BDC हो, वो BDC में SHG के मेंबर्स भी होंगे, हमारा किसान विकास समिति के भी मेंबर होंगे, और हमारा विद्यालय शिक्षा समिति है वहां का भी मेंबर होंगे। तो BDC इट्स अ काइंड ऑफ एपेक्स लेवल कमेटी। बहुत बढ़िया। और वो जो कमेटी है वो हमारे हर एक इंटरवेंशन में व्हाटएवर, चाहे वो लाइवलीहुड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, अल्टरनेटिव एनर्जी सोल्यूशन से रिलेटेड हो, वो BDC के साथ में ही बैठ के वो प्लानिंग होती है। इवन कि अगर किसी गांव में उदाहरण के तौर से 70 फैमिलीज है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल है बेसिकली 10 के लिए, तो instead of AKRSP people would decide that who would be 10 beneficiaries. Am I audible? Yeah. Instead of AKRSP people would decide ki who would be that 10 beneficiary, that that kind of beneficiary selection lies with the BDC. So they have to identify 10 most poorest among these 70 households. तो शुरुआत से क्या होते हैं कि अगर वो कमेटी को आप डे 1 से इन्वॉल्व रखते हैं अपने हर एक एक्टिविटी में, तो आपने चाहे वहां जो कोई भी फैसिलिटी क्रिएशन किए, चाहे वो आपका ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन आपने बना दिए, या उदाहरण के तौर से आपने आंगनबाड़ी को सोलर लगा दिए, या आंगनबाड़ी में आपने डिजिटल क्लास लगा दिए, तो अगर वो कमेटी में ओनरशिप है तो डेफिनेटली वो चोरी नहीं होंगे, या वो they will take care of it. They will have the certain precautionary measure. They will have a social kind of auditing process.
कि उनको वो सोशल ऑडिटिंग करके वो समझेंगे कि एक्चुअली जो हो रहे हैं, जो बेनिफिशियरी है वो राइट बेनिफिशियरी है या नहीं है, या जो हमने विजुअलाइज कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। तो बेसिकली जो एग्जिट स्ट्रेटजी AKRSP प्लान करते हैं तो वो डे 1 से ही होते हैं। अगर हमारा 5 साल का विजुअलाइजेशन किसी गांव में इन्वेस्टमेंट का है, चाहे वो टाइम का हो या रिसोर्स का हो, तो वो डे 1 से वहां पे वो कमेटी फॉर्मेशन से ही शुरू हो जाते हैं और कमेटी को एम्पावर करने से होते हैं। और फाइनली जब AKRSP एग्जिट करते हैं तो व्हाट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी क्रिएटेड बाय AKRSP और प्रोजेक्ट that supposed to hand over to the village development committees and respective committees whatever form at the village level. तो वो जो community led organization होते हैं बेसिकली वही उन चीजों को आगे लेके जाते हैं जब AKRSP उस गांव से बाहर निकलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप टोटली ये कहना चाहते हैं कि जब आपने इतना सब पूरा, वो भी बहुत चैलेंजिंग कम्युनिटी जैसा माइनॉरिटी लोग हैं, रूरल ग्रुप्स है, ऐसे वाले एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को बाद में रख के ही विजन में रख के काम करते हैं। आपका कहना है कि जब वो गांव वाले जो प्रोग्राम का ओनरशिप लेते हैं खुद का, तब आप लोग बाहर आ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। सो पांडे जी, और एक क्वेश्चन है आपके लिए क्विकली, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। सो अभी सब आप बिल्कुल, आई वुड लाइक टू आंसर because it's a kind of experience sharing ना, we have to learn from each other. एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया काम बोल रहा है। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि सर, हम ऐसे वाले कम्युनिटी से साथ काम करते हैं, रूरल एरिया पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो भी बिहार जैसे एरिया आप एग्जांपल लेके उधर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। हर एक विलेज को अगर एक विलेज में ढूंढ के अपने विजन रख के काम करते जाते हैं, आपने कुछ ऐसे सोचता है कि एक विलेज को एग्जाम्पल लेके ये स्मार्ट सस्टेनेबल विलेज, ये पूरे की पूरा, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि एंटायर गुजरात ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, हर जगह पे करो, ऐसा नहीं है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ ना कुछ विलेज लेवल पे हम बात करेंगे, ये एक विलेज को ये स्मार्ट सस्टेनेबल विलेज, ऐसा कुछ करने का आपको आइडिया है? आपने कुछ किया है ऐसा वाला? तो इसके बारे में आपका अप्रोच कैसे है? या एग्जैक्टली इस तरह के हम दो जो है अभी हमारे दो इन हाउस प्रोग्राम है। एक है हमारा जो होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट HRDP जिसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और सेकंड वन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस तरह से हमने वैशाली जो हमारा हाजीपुर, जिसको कॉमनली नोन एज हाजीपुर, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 15 गांव हमने लिए हैं। दरभंगा है जो फ्लड प्रोन एरिया है, बहुत चैलेंजिंग एरिया है, वहां पे हमने 15 गांव लिए हैं। और मुजफ्फरपुर के 3 ब्लॉक में वो हमारा है मुसेहरी, बोचहा एंड बंदरा और सकराचार ब्लॉक है। यहाँ पे हमने कुल 18 गांव लिए हैं। तो ये अगर कहेंगे तो ऐसे 48 गांव है जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड होके काम करें। इंटीग्रेटेड मींस कि वो गांव को एज ए मॉडल विलेज डेवलपमेंट करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द विलेज, मुझे लगता है कि भोलानाथ जी हैज विजिटेड देयर, दैट इज भरतीपुर। तो ही मे शेयर हिज एक्सपीरियंस आल्सो कि हाउ ही फेल्ट देयर। अगर वो वहां पे गए हैं तो उनको कैसे महसूस हुए हैं हमारे काम को देख करके। तो हो सकते हैं और गांव में भी गए हो, बट मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने वहां विजिट किया है वो गांव में। तो बेटर ये होगा कि मैं अपने काम को, क्योंकि वो फीलिंग इम्प्रेस की अपना काम को बढ़ाई करे, तो आई इनवाइट भोलानाथ जी हाउ ही फील कि AKRSP का काम भरतीपुर में कैसा है। तो ही वुड बी एज ए थर्ड पार्टी, वो जिसे बोलेंगे ना कि मैं अपना काम को खुद बढ़ा के बताएंगे, तो इट माइट बी कि मुझे आगे लगेगा कि तो भोलानाथ जी अगर आप ये काल में है तो आप बताओ कि हाउ यू फेल्ट। यस सर, मैंने भरतीपुर विजिट किया था और वहाँ के मुखिया अशोक सिंह से बात हुई थी। उन्होंने इनफैक्ट पूरा अपने पंचायत में विजिट करवाया
और आगा खां के कार्यक्रम को भी बताया कि किस तरह से आगा खां के कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, और उन लोगों ने टॉयलेट, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, इन सब जगहों में काफी काम किया है। और वहाँ पे लाइवलीहुड को लेकर के भी काफी सारे एक्टिविटी हुई है, उन्होंने बताया टाइम टू टाइम एक्टिविटी होती रहती है इरिगेशन को लेकर के। तो हो एक कंप्रिहेंसिव देखा जाए तो एक विलेज डेवलपमेंट को लेकर के इनकी स्ट्रेटजी काफी अच्छी है, और कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी से भी मैच करती है, जहाँ पे हम लोग भी अपना रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पैरेलल कहीं ना कहीं सेम टू हमारा आगा खां का दोनों का कंसेप्ट मैच करता है सर। और भरतीपुर एक अच्छा एग्जांपल है वहाँ पे। थैंक यू भोलानाथ जी, थैंक यू सुधीर सर। सुनील जी, मेरा एक सवाल आपको ये इसके बारे में है कि लाइवलीहुड के बारे में आप जानते हैं कि सोलार पे हम काफी लाइवलीहुड में हम काम करते हैं। आपने हमारा सुइंग मशीन देखा होगा, आपने हमारा प्रिंटर देखा होगा, और बाकी ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं जो हम कर्नाटक में अभी कर रहे हैं बट बिहार में नहीं कर रहे हैं, जो हमको बिहार में लॉन्च करना है। जैसे आपने बताया कि 5.5 करोड़ तक का जो सेविंग्स जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आपने क्रिएट किया है उनके पास है। अभी समस्तीपुर में, बेगूसराय में, वैशाली में, दरभंगा में ऐसे हम 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं जो इन चीजों को हमको फाइनेंस कर रहे हैं। और आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि हमने पिछले साल में करीब ना करीब 120 ऐसे लाइवलीहुड सिस्टम्स हमने उसको वो सारे जिलों में, वो ब्लॉक में हमने किया हुआ है। हाजीपुर में भी हमने किया हुआ है, और समस्तीपुर के तो मेरे को लगता है 3-4 ब्लॉक में हमारा वहां पे काम चल रहा है। और इस महीने में भी हमने कुछ अराउंड 20-25। तो ये काम जो है ये 1 साल में लोगों ने देख कर, और भी इसमें जो है इंक्वायरी जनरेट हुए हैं, और लोगों ने उसको चाहा है, उसको यूज कर रहे हैं, और काफी ऐसे बहुत सारा इंक्वायरी है। बट मुझे ये जानना है कि आगा खान के साथ जब हम बात करने गए थे लाइवलीहुड के बारे में, ये मार्केट लिंकेज का जो सवाल आया था, ये बहुत बड़ा सवाल था कि भाई स्विंग मशीन वाला जो काम अगर आप करवाते हैं तो उनका प्रोडक्ट आप कहाँ पे बेचेंगे या कहाँ पे वो करेंगे। तो ये मार्केट लिंकेज के बारे में, क्योंकि सोलार हमने सोलार को लेके, लाइवलीहुड पे लेके जो एंड यूजर को चाहिए वो दिलाया है। बट ये आप मार्केट लिंकेज के बारे में आप बता पाएंगे कि आप कैसे मार्केट लिंकेज के इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं? I would like to take the very recent example कि market, however मतलब I will start with the problem, but I go to the solution that how we that. See, Bihar is a kind of Indian, dominance economy. अगर आप बिहार को नेशनल एवरेज से, जो कि डेटा अवेलेबल है वो पब्लिक पोर्टफोलियो में, पब्लिक तो बिहार का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्योंकि उसके बाद वहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो दैट टाइम इट वाज 1% only, while national average was 22.37. तो अगर आप देखेंगे 5 महीने का अंदर था। बिहार में एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी तो हमने वो देखेंगे लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम होने के नाते क्या होता है कि आप अदर देन जैसे ही लाइवलीहुड पोर्टफोलियो में जाते हैं जो एग्रीकल्चर से निकल करके, तो मार्केट एक बड़ा चैलेंज होता है। इवन बिहार में एग्रीकल्चर का मार्केट भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे वेजिटेबल ग्रोवर के साथ हम लोग काम करते हैं तो उनको हम लोगों ने हालांकि इधर के साइड में कुछ उनको लिंक कराए हैं, बाहर में कुछ अभी कलकत्ता के जो ट्रेडर्स है आके ले जाते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडर्स ले जाते हैं। बट यस, अब सीविंग को अगर हम उदाहरण ले तो हमने जब शुरुआत किया था ताजपुर में एक हमारा बड़ा सेंटर था, तो हमने शुरुआत हो कि वहां पे टेलरिंग, डिजाइनिंग, कटिंग और वो सारे इंटीग्रेटेड हो और उसको मार्केट से लिंक करे, ताकि वो स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर के और वो तरह तरह के उसको मटेरियल उसका प्रॉफिट उन वीडियो का जुड़े हुए हैं और वो पूरा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सेवरल व्हाट आई से, क्योंकि इसमें भी अभी क्या है
अगर आप देखेंगे कि इतने मार्जिनल प्रॉफिट पे आपका लुधियाना में लोग बैठे हैं, या दे आर रेगुलेटिंग मार्केट। आप ताजपुर बिहार फ्रॉम लुधियाना, वो ताजपुर के दुकान में क्या बिकने वाला है, वो कपड़े के दुकान में कौन से फ्रॉक बिकने वाले हैं, और वो और आपके जो वो आपको अगर आप इंश्योर नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी करते हैं। तो हमने आपको ये क्यों नहीं हम उससे वो कर पाए चीजों को। अभी हमने अपना मास्क को, होता क्या है कि एक बड़ा जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में जो हम गलती क्या होती है कि शुरुआत में हम लोग वो लीड नहीं ले पाते हैं, कॉर्पोरेट ले पाते हैं, और जब तक हम लीड लेने के पोजीशन में आते हैं तब तक वो मार्केट को कैप्चर कर चुके होते हैं। बट एक्चुअली जैसे आप उदाहरण लीजिए तो सैनिटरी नैपकिन्स का, कि कितने एनजीओ ने शुरू किया, लेकिन वो विश्व या हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी और विश्व के नाम से बनाते हैं, उन्होंने मार्जिन इतने कम कर दिए, जितने एनजीओ में उतरे वो उस तरीके से खुद को नहीं एस्टेब्लिश जैसा किया था, लेकिन मास्क में ऐसा नहीं हुआ। ना केवल AKRSP बल्कि आई थिंक ऐसे मतलब डजन्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द इंडिया एंड अक्रॉस द बिहार। अभी आपको यह जान करके खुशी होगा कि सो फार AKRSP हैज मार्केटेड 1 लाख प्लस मास्क। हमने 1 लाख प्लस मास्क जो है 3 महीनों में ना तो बनाए हैं बल्कि उसको मार्केट भी किए। और अगला जो हमारा अगले जो है इस क्वार्टर के बाई एंड ऑफ दी जो अक्टूबर तक हमने सोचे हैं कि 5 लाख मास्क करेंगे, और देन अगला साल जो जनवरी 2021 होंगे तब तक हमें 1 मिलियन मास्क के वो करना है। ये मैं जो डेटा शेयर कर रहा हूँ AKRSP बिहार का डेटा है। अगर आप ओवर भी AKRSP लेंगे तो 5 लाख प्लस मास्क अभी तक हम जा चुके हैं। तो ये कुछ उदाहरण है इस नाते, क्योंकि जब तक, हालांकि अभी मास्क में भी आप देखिए या सैनिटाइजर में भी देखेंगे कि वो बड़े अब डाबर से लेकर के रहे हैं, तो मुश्किल होते हैं तो होते हैं कि हम प्रॉफिट हमारा उतना ध्यान नहीं जितना सोशल कैपिटल जनरेशन पे और उन जो प्राइम बेनिफिशियरी हमारे जो दीदियां हैं वो उनके बेनिफिट के लिए होते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं वो ये है, और जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हमने दोनों आपको बताए हैं। पर डेफिनेटली हाँ, इसमें अब कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी सेल्को अगर मैं आपको उदाहरण लूं तो डेफिनेटली आप लोगों के कुछ हो सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल, चाहे वो मार्केटिंग लेकर के हो, कुछ और चीजों को टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी में काफी पायनियर है। तो ऐसे हम लोग टेक्नोलॉजी को इंकॉर्पोरेट करके उनके क्वालिटी को कम्पीट कर सकते हैं। ऐसे हम जो है मार्केट में सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें कोलैबोरेट करना होगा। मुझे लगता है कि अभी सोशल सेक्टर नीड्स बेटर कोलैबोरेशन विद द मार्केट प्लेयर, विद द अदर लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरा मतलब अपना जो अनुभव है बिहार का। मेरे और भी जो साथी है आप इसमें जुड़े हैं जो बिहार से है या बिहार से बाहर है, उनको क्या अनुभव है, दे कैन ऐड और यू नो बट मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है कोलैबोरेशन की। बिल्कुल सर, ये इसी पे मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। पिछले 1-1.5 महीने में आपने, आई थिंक आपने हमारा डिजिटल आंगनवाड़ी जो हमने मुजफ्फरपुर में लगाया था वो आपने देखा। हम डायरेक्टरेट में, कलेक्टरेट में भी हम मिले थे, और 2-3 बार हमने DC साहब से हमने डिस्ट्रिक्ट के साथ हमने मीटिंग भी किया था। और पिछले 1.5 महीने में आपके 5 आंगनवाड़ियों में डिजिटल आंगनवाड़ी का काम सेल्को ने किया हुआ है।
आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप ये क्या देखते हैं कि सेल्को और आगा खान बिहार में, जो आप 5 जिला 5 डिस्ट्रिक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम साथ में कैसे काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मतलब इट्स ए स्मॉल स्टेप, डेफिनेटली वी हैव टू अभी बहुत आगे जाना है। इनिशियली मुझे लगता है हमारी बातें हुई और काफी आई एम मच सेटिस्फाइड, टीम भी हमारी काफी सेटिस्फाइड है। बट हम डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके जो टीम है मुझे लगता है जिसमें मुझे कहना चाहिए, क्योंकि देखिए वी आर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उदाहरण अगर हमारे पास 5 लाख रुपए, ठीक है, मैं इतना बातें रखता हूँ अगर हमने 5 लाख रुपए में हमने 5 आंगनबाड़ी को बेनिफिट करना कई स्थिति में है, if you people would able to not support you have to support those children who belongs to the utmost poor and underprivileged community. So if you able to add some value, then we can enhance the volume. हम जो है, मुझे लगता है कि आने वाले साल में, जैसे मैंने इनको भी बात किया था कि हमको ये काम अगले 3 साल में कम से कम 150 प्लस आंगनबाड़ी में हमें जाना है और इतने ही स्कूलों में भी जाने हैं स्मार्ट क्लास को लेकर के। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इससे कुछ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप हमें ये मदद कर सके कि हम कुछ और गरीब बच्चों तक पहुंच सकेंगे, तो आई थिंक इट वुड बी ए ग्रेट हेल्प फ्रॉम योर साइड, नॉट टू AKRC, बिकॉज़ हम है तो हम भी है और आप भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा। ये मेरा अपना एक रिक्वेस्ट था। एब्सोल्युटली सर। सर मैं भाई थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस वेबिनार एंड आपने आगा खान के बारे में नेशनली इंटरनेशनली आपकी हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। हमको इतना नॉलेज नहीं था और आपका विजन भी हमको अभी समझ में आ रहा है कि आप 150 स्कूल और 150 आंगनवाड़ी और आगे बहुत सारा स्कोप है हमारे पार्टनरशिप के लिए। और स्पेशली मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम भी काम करना चाह रहे हैं अगले आने वाले सालों में। तो मैं डेफिनेटली, मैं जब भी बिहार में आता हूँ तो मैं अपने पार्टनर से जरूर मिलता हूँ, बट अभी कोविड के टाइम पे मिलना नहीं हो पा रहा है। बट मैं भोलानाथ जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे मिले और आगे जो हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं इसके बारे में हम डेफिनेटली इसके बारे में और सोच समझ के एक रोड मैप बना के हम उसको आगे चलेंगे। भोलानाथ जी से तो मेरा बातें होता रहता है, डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं इनसे रिपीट करूंगा और काफी उनसे हमारा तो फेस टू फेस भी बहुत बार समस्तीपुर में भी मुलाकातें हो गई है, मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने मिले हैं और फोन पे तो मुझे लगता है काफी फ्रीक्वेंट बात होती है। तो मुझे लगता है कि लेट अस एक्सप्लोर अदर जो है, अभी तो एक आंगनबाड़ी है, स्कूल में भी स्मार्ट क्लास हमको बहुत सारे अभी करने हैं, या इसके अलावा आपने बताया किसी, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें और भी है। अभी तो लॉकडाउन के नाते उनका मुझे लगता है ट्रेवल भी लिमिटेड है। हमने इनिशियली कुछ समस्तीपुर में तो महिलाओं के साथ में एक सोप का यूनिट लगाया है। जो हमारे दीदिया है वो अपने लोकल लेवल पे श्री नाम से एक साबुन बना रहे हैं और सो फार मैन्युफैक्चर्ड ऑलमोस्ट 50,000 यूनिट, वो 50,000 साबुन बना के वो लोग बेच चुके हैं। तो उसमें भी देख, अगर आप लोग एक बार आए देखें कि कैसे अगर सोलर क्या इसको हो सकता है उसको थोड़ा और आगे करने का, इसी तरीके से कुछ चीज का यूनिट लगाया है
जो दूध से चीज बनाते हैं हम लोगों ने, वो हम लोग नहीं बनाते हैं, सॉरी, वो दीदियां बनाते हैं। वी आर ओनली फैसिलिटेटर्स, फैसिलिटेशन ओनली। इसी तरह से मतलब कई सारे काम है। हम आपने स्विमिंग का उदाहरण लिया ही, तो हाउ यू पीपल वुड एबल टू ऐड सम टेक्नोलॉजी so that their quality, their speed, their pace would be enhanced। तो वो कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकता है, वो इसको भी आप तलाश सकते हैं। नहीं हो सकता वो, अगर नहीं हो सकेगा तो अलग बात है, बट एटलीस्ट वी शुड एक्सप्लोर दी अपॉर्चुनिटी। वो क्या चीजें टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम वहाँ पे उसको करके तो आगे जा सकते हैं। यस यस यस, डेफिनेटली सर। एरिया है जो अनटच्ड है अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं वही, आप जैसे आप एग्जांपल आपने सोप मेकिंग का बताया या जो मिल्क प्रोडक्ट्स का बताया, उसको हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे और हम चाहेंगे कि हम उसके लिए सॉल्यूशंस भी दें, क्योंकि बिहार के जो प्रॉब्लम है वो बाहर के कई सारी जगहों के सेम प्रॉब्लम्स है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग टुडे। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर फॉर हैविंग यू फॉर दिस वेबिनार, and also thank you all the participants for coming for today's webinar. I would take a leave from everybody and would like to close this, and thank you also to Sudhir Kulkarni sir. सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।